سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا سوال یہ آپ سے ہے، تو جب انسان کو روزہ ہو تو بھول سے کوئی چیز کھا لے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ بھول سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بھیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مرشدی غلام مصطفیٰ اتاری ڈھیرکی سے سیدی پچھلے سال 12 ماہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ 12 ماہ میں سفر تھا ڈویژن گجرانوالہ میں، شہر رسول نگر، مسجد شاہ بیلول۔ یہ سیدی مدنی قافلے کا ایک پراپر جدول ہے، مدنی حلقے سے یوں شروع ہوتا ہے، صدائے مدینہ، تہجد، اور یوں پھر آگے کا سلسلہ ہے۔ یہ سیدی اس طرح ایک دن آیا کہ مدنی قافلے میں مدنی حلقے کا جو جدول تھا اس میں وظائف پڑھنے کی ترکیب ہوتی ہے، تو ایک دن آیا کہ اس میں وظائف پڑھنا ہمارے رہ گئے۔ اس دن صبح کے آرام میں جب آرام کے لیے لیٹے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور ہم قافلے والوں نے کچھ گزارشات کی اور عرض رکھی، اور نصیحتوں کو لیے ہم نے عرض کی کچھ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کے پیر صاحب کے جو وظائف ہیں ان پر کتنا عمل ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحتیں کی جائیں۔ تو اس سے تو ہم ایک یہی قیاس کرتے ہیں کہ آپ بڑوں کی نظروں میں، شفقتوں میں، یا سیدی آپ ہمیں بھی سنبھالے رکھیے گا۔ اس سے سوال امیر سنت یا سیدی یہی ہے کہ جب آپ نے شجرہ شریف تحریر فرمایا، اس میں یہ جو آپ نے وظائف رکھے، یہ کن کی معاونت سے رکھے، اور اس میں آپ کی حکمت عملی کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اور یہ کیا ہمارے پہلے کے جو اسلاف ہیں وہ ان کے جو طریقت کے معاملات چلتے آ رہے ہیں، کیا ان کے معاملات میں بھی اس طرح وظائف اور یوں روحانیت کے معاملات شمولیت رکھتے تھے؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ ماشاء اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے مشرف، الحمدللہ اللہ انہیں برکت نصیب فرمائے، مجھے بھی ان کی برکت نصیب فرمائے۔ یہ ابھی بار بار اس میں آ رہا ہے اسکرین میں، قصبہ کالونی لکھا ہوا دیوار پر۔ میں نے کہا سب کو مسئلہ عرض کر دوں کہ اس طرح وقف کی جگہ جو ہے، وقف کی دیواریں، اس پہ چوکنگ نہیں کی جاتی، لکھا ہوا نہیں جاتا، فوراً اس کو اگر کوئی اسلامی بھائی اس کی ذمہ داری لے اس کو مٹوا دیں۔ ماربل پہ لکھا ہوا ہے، آپ مٹوا دیں، اور آئندہ بالکل اس کو توبہ کریں۔ وقف کی جگہ ہے نا، سارے اپنے لکھنا شروع کر دیں گے تو بالکل مسئلہ ہو جائے گا، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ اشتہار لگا سکتے ہیں اس میں، نہ کوئی ٹھوک ٹھوک کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جہاں اسلامی بھائی کھڑے ہوں گے نا، اس کے یہ آگے قریب لکھا ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ مٹا دیں۔ اور وہ شجرہ شریف کی ترتیب کا آپ نے فرمایا، تو میں نے اس کو یوں سارا میرا مرتب کردہ نہیں ہے، پرانا شجرہ شریف چلا آ رہا تھا، اب وہ ہو سکتا ہے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہو یا کیا، اس کا بھی پتہ نہیں، بس چلا آ رہا تھا، تو اس پر اب وہ پرانے انداز، بعض بات ایسی تھی جو اب مطلب وہ
इसलिए मैंने वो कुछ नए सिरे से इसमें तरकीब बनाई, कुछ औराद व वज़ाइफ का इजाफा भी किया। तो यूं मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह शजरा शरीफ जो ये तरकीब है इसकी। पहले शजरा शरीफ तैयार करना शुरू किया मैंने एक बार, नहीं, और हाँ, शजरा शरीफ के लिए मैंने दावत इस्लामी नई थी, और वो सुन्नतें बयान करने लिए तो कुछ सुन्नतें जमा करनी शुरू की। ये बहुत हो गई, मैंने शजरा तो बहुत ज़ख़ीम हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको अलग कर दिया। तो यार, तो फिर ये सुन्नतें और फिर लिखते लिखाते जमा करते कराते फैज़ान सुन्नत बन गई। पुरानी फैज़ान सुन्नत ये शजरे की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अहमद रजा तारी हैदराबाद आफंदी टाउन से हाजिर हुआ हूँ आपकी बारगाह में। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिखने में कैसे लगते हैं, और अगर हमें तसव्वुर करना हो तो इसके तसव्वुर क्या किया जाए? सुभान। इसके तसव्वुर का जो है ना, वो किताबों में इसके तरीके लिखे हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर इस तरह का है, और आप यानी कि ना गोरा रंग का मुकम्मल, एक गोरा मुकम्मल गोरा होना, जैसे अंग्रेज गोरे होते हैं, ये खूबी नहीं है। हसीन मतलब चेहरा मुबारक, नाक, आंख मुबारक, नाक मुबारक, ये सारा यानी कि मोतदिल। तो यानी कोई भी यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना चेहरे मुबारक में ना बदन अतर में कोई भी ऐब नहीं, खूबियां ही खूबियां, सारा मोतदिल। कद मुबारक भी मोतदिल, हाथ मुबारक, पाँव मुबारक, उंगलियां मुबारक, सब मतलब यानी कि मोतदिल, सब बैलेंस। कोई यानी कि कुछ ये कह नहीं सकता कि इसमें ये खराबी है, खराबी है ही नहीं। जो खराबी निकाले वो खुद खराब है, ने निकालने की कोशिश करे, है तो नहीं, सवाल ही नहीं है। और ये भी बता दूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फे भी, सर पर इमामा शरीफ का ताज, चेहरे मुबारक का पर दाढ़ी मुबारक। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब क्या क्या आपने तय किया, जुल्फे मुबारक भी, तो इमामा शरीफ भी, सर अनवर पर। बाकी नाक, आंख, कान तो हमें से बनाने पर जरा हमारे इख्तियार में नहीं है, जैसे बन गए बन गए। अब ये कि जुल्फे रखने में इख्तियार है, इमामा शरीफ सजाने में इख्तियार है। ये नकल जो कर सकते हैं वो तो हम कर लें, मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, तो इंशाअल्लाह। जिन्होंने नहीं रखी वो आज से नियत कर लें जुल्फे, लेकिन वो जुल्फे, हाँ, चालाकी वाली जुल्फे नहीं, ये जुल्फे चालाकी वाली जुल्फे कहता हूँ कि ये कलम से सर शुरू होता है, यहाँ से काट देते हैं, बाद लोग पीछे से अंदर से हल्की हल्की कर लेते हैं, एक चीज बच्चलवा गया, ऐसी नहीं, यहाँ से भी सब ये पहले शुरू में जैसा मेरे ये है ना, यूं महसूस हो रहा है, ये आहिस्ता से के मुड़ेंगे, ये मुड़कर फिर ये पीछे जाएंगे दोनों तरफ से, ये होंगी असली जुल्फे। हाँ, कहीं से भी यहाँ से पीछे से बीच में से काटना नहीं, तो जुल्फे। बाकी एक तादाद है हमारी कि जो साइडों से यहाँ से कटिंग करते हैं, सेट कराते हैं, तो फिर ये जुल्फे नहीं है, कोई और फैशन के बाल होंगे, ये जुल्फे तो पूरे पूरे बाल रखनी है। तो जिस तरह मेरे मुस्तफा ने रखी, इस तरह हमें जुल्फे रखनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इमामा शरीफ का ताज भी सजा लें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया। सर से पाँव तक हर अदा है लाजवाब, सर से पाँव तक हर अदा है लाजवाब, खूबरूयों में नहीं तेरा जवाब, खूबरूयों में नहीं तेरा
صورت لاجواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب خوبرو مانے خوبصورت حسین، خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب، جو خوبصورت ہوتے ہیں نا ان میں بھی آپ ان سے بھی خوبصورت ہیں، بلکہ وہ ذوقینات میں نا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک حسن و جمال یوسف علیہ السلام کا مشہور ترین بہت حسین تھے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک حسن کی بات ہے تو کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، یا رسول اللہ آپ کے حسن و جمال یہ امیدوار، یہ اگر میں لسٹ بناؤں تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ حسین مانے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، میں ان کا نام لوں گا، یہ بھی آپ کے حسن و جمال کے امیدوار ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جو حسن و جمال ملا وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی ایک جھلک ہے۔ جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے۔ جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، تیری ادا۔ سبحان صلو۔ میرا سوال ہے عشق اور محبت میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو ان دونوں میں انتہا کس کی ہے؟ عشق کی انتہا ہے یا محبت کی؟ غالباً یہ کہ محبت ہی ہے، دونوں محبت، عشق میں یہ تھوڑا مبالغہ ہے، بہت زیادہ محبت، شدت محبت کی۔ میرے کو جو یاد پڑتا ہے عشق تو عشق بڑا نا، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ عشق کی تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں محبت بمعنی لغوی، جب پختہ اور مؤکدہ، یعنی محبت جب بہت زیادہ پکی ہو جائے تو اسی کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر جس کی اللہ تعالیٰ سے محبت پختہ ہو جائے اور اس پر پختگی محبت کے اس طرح آثار ظاہر ہو جائے کہ وہ ہمہ اوقات یعنی ہر وقت اللہ پاک کے ذکر و فکر اور اس کی اطاعت یعنی فرما برداری میں مصروف رہے، تو پھر کوئی معنی یعنی رکاوٹ نہیں کہ اس کی محبت کو عشق کہا جائے، کیونکہ محبت ہی کا دوسرا نام عشق ہے۔ عاشق رسول کی 6 نشانیاں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستطاب شان حبیب الرحمن عاشق کی تعریف میں یعنی ڈیفینیشن کے طور پر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے 2 فارسی اشعار نقل کیے۔ عاشقارا شش نشاں استے پسر آہ سردو رنگ زردو چشم تر، گر ترا پرسن سے دیگر کدام، کم خوردو کم گفتنو خفتن حرام۔ ترجمہ، اے بیٹے عاشقوں کی 6 علامتیں ہیں، سرد آہیں بھرنا اور چہرے کا رنگ زرد ہونا یعنی پیلا پڑا ہوتا نا، پیلا ہونا، اور گریا ازاری یعنی رونا۔ اگر بقیہ 3 نشانیاں بھی پوچھنا چاہو تو وہ یہ ہے کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔
दुनिया की लज्जतों से मेरी जान छूट जाए, मुझको बना दे या खुदा तू आशिक रसूल। अल्लाहुम्मा आमीन या खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा ख्वाब में जो है मदीने शरीफ पहुंच जाता है। अब जिसे मैं अपना वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि चंद दिन पहले ऐसा हुआ कि मदीने शरीफ की ज़ियारत हुई, लेकिन बस इब्तिदाई थी कि आँख खुल गई। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या हिकमत है कि काश ऐसा हो कि बंदा अगर साहिब दर तो दूर की बात, कम से कम दर को ही देख ले। और दूसरी अर्ज़ यही थी कि मेरे पास तो कुछ ज़ाहिरी ऐसे असबाब नहीं है, लिहाजा जो करना है वो आपको करना है, आप करम फरमाएं। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गया। दुरुशी भी कसरत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह तरकीब भी बन जाएगी। जब वो चाहेंगे बुला लेंगे। बुलाते हैं उसी को जिसकी बिगड़ी ये बनाते हैं, कमर बंधना दियारे तैयबा को खुलना है किस्मत का। अल्लाह करम सबकी किस्मत खुल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान अतारी मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से हाजिर हूँ। मैं यहाँ तखस्सुस फ़ी दावा यानी मुबल्लिग कोर्स के लिए हाजिर हूँ। या सैयदी, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुआशरे में कुछ लोग कानों में बालियाँ, हाथ में ब्रेसलेट और छल्ले वगैरह पहनते हैं, इनका ऐसा करना कैसा? बालियां कानों में, छल्ले, ये सब ये जायज नहीं। मर्द जो पहनते हैं ना, जायज नहीं। और इनकी इस्लाह कैसे की जाए? शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये मसाइल तब से मैं बयान कर रहा हूँ। इसमें उम्मीद है कि हजारों ने मेरी इस दावत को कबूल तो किया होगा। दावत इस्लामी वाले आपके वो छल्ले और औरतों वाले एयरिंग पहनने में नहीं मिलेंगे आपको। ना नाक में बाली वाले मिलेंगे, ना कान में बाली वाले। यूं फायदे तो है ना, कोशिश ही कर सकते अपने, समझा सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमील सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है बाबा, क्या असाब जो होता है लाठी, ये कि इस्तेमाल करना सुन्नत है? कमोबेश 23 साल कबल 2000 में जब शूरा बनी थी, आप लाहौर सोडी वाला आए थे, आपके हाथ में असा पहले होता था। फिर आपके आस्थाने पीर कॉलोनी में भी घर के बाहर देखा था मैंने, असा होता था। लेकिन अब चूंकि आपका ज़ौफ़ अब 75 साल उम्र है, अब असा इस्तेमाल नहीं करते, इसकी कोई हिकमत? फिर पंजाब में भी ये देखा, जुमा का खुतबा मखसूस असा पकड़ के ही दिया जाता है, काफ़ी बड़ा असा होता है। तो हमारे कराची में मैंने ट्रेंड नहीं देखा, पंजाब में तो अक्सर मसाजिद में देखा। आप असा भी ज़ौफ़ में इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर सुन्नत जो भी है हुक्म फरमा दो। मैंने असा इस्तेमाल करना शुरू किया ना, तो चारों तरफ से तरह तरह के असा तोहफे में आने शुरू हो गए। अब इसकी दुकान खोलूं, क्या करूं? अच्छा, इसको तोहफे में भी किसको दूं? इनको तोहफे में दूंगा तो गुस्सा आएगा, एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे साथ में। अच्छा, फिर ये कि मेरा ये जहन बना, यानी असा जो है ना, वो सपोर्ट के लिए, दुश्मन से हिफाजत में भी काम आए इस तरह। तो अब असा तो तरह तरह के खूबसूरत और नाजुक असा होते हैं। ट्राई के लिए आपके सर मारूं, सर नहीं फटेगा, सर टूट जाएगा। तरह तरह के असा। अच्छा, फैंसी असा, वो सींगों के पीस जोड़ जोड़ के असा बनते हैं, एक से एक असा बनते हैं। अब ये भी तय करना मेरे लिए मुश्किल हो गया कि कौन सा असा सुन्नत है। क्या वो असा के जो खाली खूबसूरती के लिए हाथ में रहे, या वो असा कि जो मतलब दुश्मन आ जाए तो काम दे, कुत्ता भौंकता हुआ हमला करे तो जरा यूं अपनी हिम्मत रहे, बाकी ये डंडी तो उसको मारेंगे तो टूट जाएगी। तो खैर, मैंने फिर ये कर असा संभालना, फिर ये कि चारों तरफ से तोहफे में आना, फिर ये नौजवान अगर असा पकड़ लेंगे तो पुलिस कहीं घेर न ले कि लड़ने के लिए कहाँ चले हो, किस पर हमला कर रहे हो। तो एक तादाद है जो मुझसे मोहब्बत करती है, तो इसका इम्कान के ये भी कहीं ऐसा उठा लेंगे और घरों में हंगामा हो जाएंगे, खानदान में हंगामे हो जाएंगे कि ये क्या कर ले, सबकी समझ में आता नहीं है। तो इस दौर में असा वैसे भी यूज कम है, बड़े बूढ़े बालवत रखते हैं। तो ये कह, मुझे तो असा शायद ये
मैं रखूं तो भी मुझे पता नहीं, शायद मौफिक भी ना आए। ये भी होता है ना कि अस्सा पकड़कर चलना, ये भी शायद एक फन है। ये अस्सा बाज़ औक़ात फिसलता भी है, बाज़ औक़ात इसमें लोहे की नोक भी लगी होती है, तो वो अगर किसी के पाँव पे रह गया तो भी मसला खड़ा हो जाएगा। तो किस तरह का अस्सा हो जिससे सुन्नत अदा हो, इसमें तिश्नगी है, अल्लाह बेहतर जाने। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्सा मुबारक खुतबे में इस्तेमाल फरमाना, किसी अस्सा को नवाजना, ये ज़ौफ़ के दौर में था। जब आपकी उम्र शरीफ, उस दौर में आपने अस्सा लेना साबित है, और इससे पहले अस्सा न लेना भी साबित है। और जिहाद के दिनों में तलवार शरीफ दस्ते मुबारक में रखकर खुतबा देना, ये भी साबित है। अब ये कि अस्सा रखने के लिए सुन्नत का भी कौल है और मकरूह का भी कौल है, दोनों कौल है। तो जहां सुन्नत और मकरूह दोनों का कौल हो तो वहां तर्क औला होता है, इसको छोड़ना ये बेहतर होता है। इसलिए खुतबे में अस्सा में नहीं रखता, शायद जिंदगी में कभी ना रखा हो, या कभी रखा हो तो मुझे हो सकता है कभी इक्का दुक्का ही रखा हो। तो ज़माने दाऊद इस्लामी के पहले से मैं खुतबे में अस्सा नहीं रखता था। अब अच्छा, अस्सा कौन सा खुतबे में रखना सुन्नत, ये फिर भी समझ में नहीं आता। ये खूबसूरत खूबसूरत आईने के टुकड़े लगे हुए, उससे अस्सा देखे, मतलब अब पता नहीं ये अस्सा रखने से सुन्नत अदा होगी नहीं, मुझे पता नहीं है। अव्वल तो सुन्नत तो क्योंकि मकरूह भी तो है ना कौल, तो रज़वी उलमा को मैंने देखा था वो अस्सा नहीं लेते थे। हजरत मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अस्सा नहीं रखते थे। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ये याद पड़ता है अस्सा मुबारक नहीं रखते थे खुतबे में। बहरहाल ये मैंने जो अपने उलमा को देखा, फिर सुना, फिर मैंने खुद पढ़ा भी, अस्सा में सुन्नत और मकरूह दो कौलें, तर्क औला है। यूं मतलब अस्सा की तरकीब मेरी नहीं है, कराची में अस्सा है मस्जिदों में, ये दावत इस्लामी की तरकीब के जो इस्लामी भाई है ना वो नहीं रखते होंगे, बाकी दीगर सुन्नी रखते होंगे। जो रखे वो भी गलत नहीं है, तो बुरा भला उसको भी नहीं कहना। तर्के ओला अगर रहे भी तो तर्के ओला करना, खिलाफ ओला काम करना एक गुनाह नहीं होता, मुनासिब होता है कि ना किया जाए वो काम। किसी को छेड़ना नहीं है, जाके नहीं उलमा को समझाना शुरू कर दें और फिर आपके बदले वो माइक पर मुझे समझाना शुरू कर दें और मुश्किल खड़ी हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के जहन रखने वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी के 12 दीनी काम हैं वो सबके लिए एक ही जैसे हैं, जबकि जहन जो है वो मुख्तलिफ हैं और 12 दीनी काम वो एक ही हैं। तो ये 12 के 12 दीनी काम सब लोगों के जहनों के अंदर कैसे डाले जाएं, बराए करम रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। कोशिश करते रहे दावत इस्लामी काम होता रहे, 12 दीनी काम भी होते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग करीब आते, हम लाखों अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के साथ शामिल हो ही गए। तो आप भी उसी तरीके पर, जो आपको गालिबन अगर जिम्मेदारी है आपकी, अब पता होगा किस तरह काम करना है, कोशिश करते रहे, नेकी की दावत देते रहे, नेक अमाल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, इंशाल्लाह उसमें नेकी के दावत, नेक अमाल में दीनी काम भी तो है, सारा सब कुछ है इसमें, सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ है। जहन मुख्तलिफ तो रंग भी मुख्तलिफ है, मिजाज भी मुख्तलिफ, तो इसमें क्या हुआ, मतलब मुसलमान तो सब एक ही है ना। ट्रैफिक कमाने में सबके लिए एक ही होते हैं, जहन मुख्तलिफ होते हैं। इमाम वो एक रिवायत है ना, वो शहद की मक्खी की, शहद की मक्खी जब भी एक मुख्तलिफ जायके के फलों का रस लेती है,
कोई फीका कोई कड़वा, और सारे ये मीठे बन जाते हैं। तो कैसे बन जाते हैं? तो दुरूद शरीफ पढ़ती हुई रास्ते में ये आती जाती है। दुरूद शरीफ की बरकत से और ये कड़वे फीके मीठे सब ये मीठे हो जाते हैं, उसका नाम हो जाता है शहद। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी तरह कोई अरबी अजमी काले गोरे ये सब कलमा पढ़ते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर सब एक हो जाते हैं, इनका नाम मुसलमान हो जाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एजाज अत्तारी हैदराबाद शहर से मद्दी मुज़ाकर एक ने हाज़िरी हुई थी। फिर साहब किसी ने सवाल किया है कि जो आपका रिसाला है उसमें हदीस पाक नकल हुई है, उसमें यह है कि अल्लाह पाक चाहे तो मुसलमान के सारे गुनाह की सज़ा आखिरत में दे, लेकिन माँ बाप के नाफरमान की सज़ा उसको दुनिया में मिल जाती है, और अगर दुनिया में उसको सज़ा मिल जाती है तो फिर क्या सज़ा उसको आखिरत में भी मिलेगी? जी हाँ, आखिरत के तो अजाब की वईद है ना, दुनिया में मिल गई तो आखिरत की माफ हो गई, ऐसा तो कहीं नहीं पड़ा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, एक भाई अपनी बहन और बहनोई को मनाने के लिए जाते हैं, सुलह के लिए जाते हैं। अब बहनों और बहनोई उनसे शर्त रखते हैं कि फलां अजीज़ा को छोड़ें, तो उनका ये कहना माना जाएगा? क्या उन्हें छोड़ा जाएगा या उनका ये कहना नहीं माना जाएगा? फला अजीजा से क्या मुराद? खाला जैसे रिश्ते में है कि फला खाला को आपने हमारी वजह से छोड़ना होगा, माँ तो बाप कहते हैं, बहन कहती, जिन बहन को भाई मनाने गया है वो बहन और बहनोई शर्त लगाते हैं कि आप उनसे ताल्लुक नहीं रखेंगे तो फिर हम मानेंगे। नहीं, ये शर्त तो गलत है। खाला तो महारिम में से ना जी, और महरमा है और रिश्तेदार है, उसके जो भी शरीयत ने हुकूक रखे वो तो अदा करने ही पड़ेंगे। ये गलत मुतालबा है। तो क्या बहन को छोड़ा जाए या फिर बहन को भी ना छोड़ा जाए? अब वो शरीक नहीं होते हैं इस मामले में, क्या कोई क्या? बात नहीं, आप दावत दे दे, घसीट के लाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बना कर दोनों से रखनी है। आप दुआ फरमा दीजिए कि सुलह हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। वालदा के लिए शिफाए कामिला की दुआ फरमा दीजिए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज़ इस गुलजार के